دنیا میں اس وقت کوئی خوش ہو یا نہ ہو، ایک وزیر بہت خوش ہے. ان حالات میں بھی ایک وزیر خوش ہے. انہی حالات میں تو ایک وزیر خوش ہے. کون ہے اور کیوں خوش ہے؟ ذرا ڈیٹیل بتائیں پلیز ایکسپلین. کیوں خوش ہے اور کون خوش ہے؟ منسٹری آف کلائمیٹ چینج، دراصل ریویو آف پاکستان سٹیزنز پورٹل ہوا جس میں کہ 10 منسٹریز کا نام آیا اور ان 10 منسٹریز کو رینک کیا گیا ان کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے کہ کون ان سے کتنا سیٹسفائیڈ ہے. تو ٹاپ پر جو نمبر 1 سلاٹ پر جو منسٹری ہے وہ ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج. 57% لوگ اس سے مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں ان کی پرفارمنس سے. اور پھر ظاہر وزیر کون ہوئی؟ زرتاج گل صاحبہ. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم زرتاج گل صاحبہ. ایک تو آپ سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ منسٹری جو ہے وہ آپ کی جس طریقے سے کام کر رہی ہے، کیسے آپ نے ان حالات میں ایک آپ ہی خوش ہیں. بالکل. اور ایک آپ سے ہم پھر یہ بات بھی ضرور کریں گے کہ آج کل جو نواز شریف صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے ان کو لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، وہ کوششیں جو ہیں وہ کیا سیٹسفائی کر پائیں گی آپ لوگوں کو، کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے ہم. لیکن پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو سیٹسفیکشن لیول ہے 57%، 10 منسٹریز میں ٹاپ پہ آپ کی منسٹری ہے، یہ کیسے میجر کیا گیا کہ یہ سیٹسفیکشن لیول ہے لوگوں کا، اور یہ کیسے پتہ چلا آپ لوگوں کو کہ اتنی اچھی پرفارمنس رہی ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو آپ لوگوں کی منسٹری نے کی؟ جی تھینک یو جی، بہت شکریہ. اللہ مٹھائی کھلائیں آپ خیر جی، آپ کو سن حلوہ کھلائیں گے، لیکن اللہ الحق ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں پر آپ کو اس طرح کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ آپ کی ساری تکلیفیں اور آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں. جب سے یہ پرائم منسٹر پورٹل پرائم منسٹر نے شروع کیا تھا، یہ بھی اٹ سیلف ایک ریولوشن ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر کو، ملک کے حکمران کو، یا ٹاپ ایک جو ہاؤس ہے یا جو آفس ہے پرائم منسٹر، اس کو عوام کو شکایت کرنے کے لیے کوئی راؤٹ نہیں کرنا پڑتا. نہ مجھے کہنا پڑتا ہے، نہ آپ کو، نہ کسی کو. وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر پورٹل پہ ایک بتاتے ہیں کہ مجھے یہ ایشو ہے. اچھا، اس کا رسپانس ٹائم بہت زبردست ہے. وہ فوراً وہاں سے اس شعبے سے ریلیٹڈ وہاں سے فوراً آ جاتا ہے کہ اب آپ اس کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور حل کب کرنا ہے. وہ ہم نے جا کے آنسر کرنا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے لاسٹ ایئر کلین گرین پاکستان ایک بیہیویئر چینج کی موومنٹ شروع کی. ہوا کیا کہ وہ بیہیویئر چینج پہ پہلی دفعہ علماء کرام، اسٹوڈنٹس، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اینکرز اور ہمارے علماء کرام، ہمارے اسٹوڈنٹس، اسکول، کالجز اور ہماری لوکل کمیونٹی جو تھی، وہ سب کے سب آن بورڈ ہو گئے، جس کا نعرہ یہی تھا کہ میرا شہر اور میری اونرشپ. تو وہ اس کا 19 سٹیز میں وہ ایک کمپٹیشن کروایا گیا ہے کہ میرے شہر اور میری گلیاں جو ہیں اور میرا محلہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں، میری بھی رسپانسبلٹی ہے. اس اویئرنیس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر شکایات تھیں وہ 33% ہائیسٹ جو ہے وہ کلین گرین سے ریلیٹڈ تھی، میونسپل سروسز سے ریلیٹڈ تھی. فار ایگزامپل کہیں پر درخت کٹ رہا ہے، یا فار ایگزامپل کہیں پر نالی خراب ہے، یا فار ایگزامپل سناوا سے ایک وہ آئی کمپلینٹ آئی کہ بیچ شہر کے اندر جو ہے ایک بھٹا کھل رہا ہے. اچھا، اینٹوں کا بھٹا کھل رہا ہے. یا کہیں پر کمپلینٹ آئی کہ وہاں پہ درخت کٹے جا رہے ہیں. اب وہ فوراً ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ شکایت آئی ہے. تو چونکہ کلین گرین میں ہم لوگوں نے ڈیسیز کے اندر تمام پروونسز کو اور تمام ڈسٹرکٹ کو آن بورڈ کیا تھا، اس کا یہ ہمیں بینیفٹ ہوا کہ ہم نے کلین گرین میں لوگوں کے ساتھ لائز آن، اور ہم نے ان سے جواب لینے شروع کر دیے کہ بھئی یہ آپ کی کمپلینٹ ہے. اور کہیں پر اگر جلدی نہیں ہو رہا تو میں نے اور میرے سٹاف نے، سیکرٹریز نے خود ڈائریکٹ کال کرنے شروع کر دیے کہ بھئی یہاں پہ درخت کٹ رہے ہیں، یا یہاں پہ لاس ہو رہا ہے، یا یہاں پہ یہ چیز مسئلہ آ رہی ہے، تو آپ اس کو فوراً حل کریں. لاہور کے اسموک کے ایشو میں فیصل آباد میں بہت زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹ آئیں جب ہم لوگوں نے گرین زون، ریڈ زون کرنے شروع کر دیے. تو وہ جو ہمارا ایک رسپانس میکنزم تھا وہ اس قدر کوئک ہو گیا کہ الحمدللہ پھر جب ابھی 2 سال کی پوری کارکردگی جب آئی کہ سیٹسفیکشن لیول لوگوں کا کیا ہے، وہ 57% میں عوام کی فیڈ بیک پر بیسڈ ہے. یہ جو نمبر ہے فیڈ بیک کے اوپر بھی ہے. دیکھیں شفا، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں ہمارے جیسا ملک، وہاں پہ ارجنسی لا کی ہو سکتی ہے کہ کسی کو انصاف نہیں مل رہا، یا پرچہ نہیں کٹ رہا، یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے خدا نخواستہ، یا ناانصافی کر رہا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یا BHQ میں یا اس طرح کی کسی یا مجھے کمرہ نہیں مل رہا ہے، یا مجھے ڈاکٹر رسپانس نہیں کر رہا، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اور مجھے بجلی کا پانی کا مسئلہ ہے. لیکن یہ ایک انڈائریکٹ منسٹری ہے. اس کے باوجود چونکہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن اس قدر لوگوں میں پینیٹریٹ کر گیا، اور پھر میری اور میری منسٹری کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ بھی اس قدر کوئک ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ کانسیپٹ پھیل گیا کہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی
क्लीनलीनेस की, ग्रीनरीनेस की, कि उसमें फिर हमने फौरन रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। यहाँ तक भी हुआ कि पार्लियामेंट में सवाल आ गया किसी एमएनए की तरफ से, वो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। प्रोविंस ने हमें ये लिखा कि जी ये ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपनी डीजीज को, एपीएस को भेजा कि नहीं, ये आप वहां जाके खुद चेक करके आए। तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 57% हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर अवाम का जो एतमाद है। अब ये दो बातें हैं, एक तो ये कि हमें इस बात पे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मैं भी इसी तरह कि अब 57 आ गया है तो अगले साल का फिर बेंचमार्क और बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, ये कहते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन लेवल ज्यादा हो जाता है। अगले साल इसका मतलब है कि और अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर। लोग अब समझते हैं कि मेरा मोहल्ला साफ होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, दरख्त नहीं कटनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक भी लिखते हैं कि जो फलाने डिस्ट्रिक्ट में पीएचए है वो उस तरीके से प्लांटेशन नहीं करा, तो हम उस पीएचएस को फौरन फोन करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपके शहर में अर्बन प्लांटेशन क्यों नहीं हो रही। तो आपकी मिनिस्ट्री का बजट कितना है? हमारी तो इस साल तो हमें 6 अरब दिया गया। अच्छा, सही है। और ये जाहिर है एक ये पिछले साल से बड़ा है? नहीं, ये ऐसा हुआ है कि देखें, जारी बात है पेंडेमिक की वजह से हर जगह रिसेशन आया है। वैसे तो हमारा तो मेन जो है एक बजट है वो तो बेसिकली बिलियन सुनामी का है, जो कि 127 बिलियन है, लेकिन हमें फिर उसके हर साल कुछ पैसे दिए जाते हैं। लेकिन 6 अरब का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 6 अरब है, 6 अरब मैचिंग ग्रांट्स प्रोविंसेस की है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सूबा बहुत अच्छा काम करता है, जैसे केपी बहुत अच्छी प्लांटेशन करता है, अगर फर्ज करें हम 1 अरब देते हैं तो वो 1 अरब खुद भी लगाएगा, ठीक है, तो बेसिकली वो 2 अरब हो जाएंगे। तो वो मैचिंग ग्रांट्स, अगर हम बलोचिस्तान को 50 लाख देते हैं फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट को, तो 50 लाख उस डिस्ट्रिक्ट ने खुद भी, उस गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल ने लगाना है, तो वो 1 करोड़ बन जाएगा। और दूसरी बात है, ये जो 6 अरब है इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा है और ज्यादा होना चाहिए ये, बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है जो हमसे काफी लोगों ने पूछा कि भाई वो जो मुनाल है उसका क्या मामला है, वो क्या बंद हो गया है, अब हम वहां नहीं जा सकते, लोगों को तो बड़ा या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उसका क्या है सैर करने का? अच्छा, मैं खुद भी चाह रही थी कि मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करूं। एक तो ये कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अभी पिछले दिनों, लास्ट मंथ ही टोटल 15 के करीब नेशनल पार्क का इफ्तिताह किया। ये भी यहाँ पे सबसे बड़ा एक हाँ जी, कि आप एक कंजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, और आप लैंड रिजर्व कर रहे हैं, और आप अपनी फ्लोरा एंड फौना को बचा रहे हैं, और आप वहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं होने दे रहे कमर्शियल, तो या बिजनेस एक्टिविटी, वहाँ आपका सिर्फ मकसद है अपने फ्लोरा एंड फौना और बायोडाइवर्सिटी को बचाना। ये भी हमारी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज को एक क्रेडिट जाता है कि हम लोगों ने रेड डेटा बुक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लॉन्च की। यानी आपके पास डेटा है नहीं और आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ जो है वो मुल्क में नापैद हो रही है या ख़त्म हो रही है, किस चीज़ को, कौन सी चीज़ डेंजर जोन में है। तो उसमें फिर हम लोगों ने रेड डेटा बुक जो है वो स्टार्ट की है, तो जिसमें हम आपको इंशाल्लाह एक दिन ये ज़रूर बताने में कामयाब हो जाएंगे कि पाकिस्तान में कितने नायाब स्पीशीज़ हैं, जैसे ब्लाइंड डॉल्फिन है, ठीक है, इसी तरीके से और ऐसे स्पीशीज़ हैं जो पाकिस्तान में जो कहीं पर भी नहीं, और आप उसके से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं, आप दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको बचाना भी है। अब नेशनल पार्क की जो एक डेफिनेशन है, उस नेशनल पार्क के अंदर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो पहले से हुई है, अब यही प्रॉब्लम है कि नेशनल पार्क कुछ ऐसे पाकिस्तान हैं जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है। अब वो किसने इजाजत दी? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे, किसी ने तो दी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मौजूद है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मौजूद है, या फिर आपको जितना एरिया उस वक्त हालात के मुताबिक आपको दिया गया, आप उससे बड़े क्यों? अच्छा, आपने कितना लॉस उस इन्वायरमेंट को पहुंचाया? फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों को पता है कि यहाँ पे सारे वल्चर्स हुआ करते थे। वल्चर्स आपका एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि चीज़ों को खुद ही डिके, खुद ही वो कर देता है नेचुरली चीज़ों को। अब वो नज़र आपको नहीं आते, अब आपको उस तरीके से जुगनू नज़र नहीं आते, आपको उस तरीके से बटरफ्लाइज नज़र नहीं आते हैं, एक तो वो स्प्रे की वजह से और इस तरह की चीज़, तो आपने बड़ा लॉस पहुंचाया नेचर को। अब फॉर एग्जाम्पल आप लेकिन बड़ा साथ में अब यहाँ पे इट इज अ कैच 22, जहाँ पे मुनाल इस्लामाबाद की वो जगह है कि जहाँ पर कोई शहर के बाहर से आता है तो पहली फैमिली जहाँ पर लेकर जाना होता है वो कहते हैं मुनाल लेकर जाएंगे आपको। अब वहाँ पर भी एक टूरिज्म की भी एक चीज है जो एक फिजा है वो कायम हुई हुई है उनकी वजह से। अगर तो परमानेंटली बंद कर देंगे आप लोग, और इस नेशनल पार्क की डिमार्केशन आप लोगों के दौर में अब हुई है, तो पिछले वालों ने जिन्होंने इजाजत भी दी उनको तो पता नहीं था कि ये नेशनल पार्क आने वाले वक्तों में इमरान खान साहब डिक्लेयर कर देंगे। नहीं, ये नेशनल पार्क शिफर डिक्लेयर था। अच्छा, पहले से था? हाँ, अनफॉर्चुनेटली जैसे
मरगला नेशनल पार्क है, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों ने उसकी सेंस को ही नहीं समझा। लाल सोहारा पार्क है बावलपुर में, इसी तरह जुनेपर की ज़ियारत में है, लकड़ी भी कट रही है, दरख्त भी कट रहे हैं, जुनेपर के हजारों साल वाले, वो तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो तो इस कदर खूबसूरत है, फॉसिल्स। तो अब इसका होगा क्या, बंद कर रहे अब हैं? इसका क्या होगा? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि कोई डिमोलिश नहीं करे कोई चीज, हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक नोटिस लिया था कि भाई क्यों ये पार्क्स के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, या जितना एरिया किसी पिछली हुकूमत ने आपको दे दिया था आप उससे बढ़ के क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, और आप कितना माउंटेन्स को, बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल उसको एनवायरनमेंट को आप लॉस दे रहे हैं, उसकी रेमेडी हो सकती है। CSR के तहत आप बता सकते हैं, आप उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप इतना ही अब फायदा एनवायरनमेंट को दे दें, क्योंकि आपका वहां भी तो वहां कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड बात ये है कि चूंकि मास्टर प्लान बन रहा है और नयर अली दादा जो आर्किटेक्ट हैं फेमस, और इसमें बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जो है, आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर्स उसका हिस्सा हैं। ये भी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए करवा रहे हैं कि आप अर्बन प्लानिंग करें, जिससे अभी आपने कराची का कराची सईद गनी साहब से बात करें, इलीगल अर्बनाइजेशन और बहुत ज्यादा एक्सपैंड अर्बन स्प्रॉल हो गया है। मास्टर प्लान तो गायब ही है कराची का, एग्जैक्टली, मास्टर प्लान गायब। तो ये इस्लामाबाद के साथ भी यही हो रहा है। तो उसके अंदर ये सब ज्यूरिसडिक्शन तय हो जाएगी और उसमें हम इंशाल्लाह उसका बेस्ट सोल्यूशन निकाल लेंगे कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसकी रेमेडी यही हो सकती है कि आप CSR के तहत उस लोकल इन्वायरमेंट को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में मुश्किल काम है, लेकिन आप रिवाइव कर सकते हैं इन चीजों को। तो कोई डिमोलिश कोई चीज नहीं हो रही, डिमार्केशन के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के बाद इंशाल्लाह हम इसको बेहतर बनाने में और अपना दोबारा नेचुरल एनवायरनमेंट रिवाइव करने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो लेकिन ये कि हम एक मार्क, लेकिन हम एक जरूर एक शिफा एक लाइन सेट कर दें कि नेशनल पार्क में कंस्ट्रक्शन की मजीद कोई इजाजत नहीं है। वहां सिर्फ बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, वहां पे आप स्टूडेंट्स को लेकर जा सकते हैं, नेचुरल फ्लोरा एंड फाना को आप बचा सकते हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटी कमर्शियल इजाजत एक चीज की जो है वो जिक्र हो गया, एक दूसरी चीज की इजाजत थी जो आप लोगों ने दी थी, और अब उस इजाजत के बाद फिर बहुत सारे मसाइल हो गए। अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या किया जा रहा है? हुकूमत की तरफ से खत तो लिख दिया है बरतानवी हुकाम को, लेकिन जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि इसहाक डार साहब भी वही हैं। अच्छा, शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि 2 मार्च को ये खत लिखा था, जवाब कोई नहीं आया। अच्छा, अली इमरान साहब भी, तो वापस तो कोई नहीं आता। तो मेरे ख्याल में आप लोग ये शायद बैटल हार चुके हैं, वापसी तो नहीं होती इस तरीके से जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, वो खुद आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे। अच्छा, अवैस बैटल तो PMLN हार चुकी है। जितने भी आपने नाम गिनवाए उसमें सब के सब PMLN की ही मेन लीडर्स हैं, और जो इस मुल्क में हुकूमत कर चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि इनकी तमाम स्टेक्स और तमाम सियासत इधर ही थी। लेकिन जिस टाइम पे उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, या उनके वर्कर्स के ऊपर या पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो वो उनको अपने पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन प्यारी को वो यहाँ से भागे भगोड़े हो गए। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो लॉस तो है वो तो PMLN के वर्कर्स को और आइडियोलॉजी को हुआ है। वापस तो आप लोग लाना चाहते हैं? अच्छा, आप वापस लाने की बात है, एक तो मुझे PMLN की वो नहीं समझ आती है। थोड़ी दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ को की ज़रूरत पाकिस्तान को है। आज जब उनको वापस लाने का प्लान हुआ है तो वो कह रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ा कोई जुल्म हो रहा है। ये तो वो आप लोगों को भी तो ख्याल तब आता है ना जब कोई तस्वीर आ जाती है। इस तस्वीर से वैसे क्या आप लोगों को एक हलचल क्यों मचती है हुकूमत में? मियां साहब की तस्वीर देखे, कॉफी पीते हैं तो उस पे एतराज कर, पीने दे कॉफी उनको, आप अच्छा, एक कॉफी से क्या? नहीं, कॉफी पीने पे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन ये इस तरह फील होता है कि आप कौमी इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये इजाज़त हमने नहीं दी। इजाज़त किस तरह दी है? एक शख्स कहता है कि मेरे 2000 के करीब प्लेटलेट्स आ गए और मैं इसका दर बीमार हूँ, कि आपको एक ऑनरेबल जज भी कह रहे हैं कि आप 3 या 4 दिन की गारंटी दें। तो उसको आपके डॉक्टर्स ने एंडोर्स किया था ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि इनको कुछ नहीं होगा। आप, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप चूंकि कन्विक्टेड हैं तो जब आप यहाँ से जाएं तो आप एक एफिडेविट देकर जाएं, लेकिन आपके जो भाई साहब हैं वो आपके जमानती बन जाते हैं 20 रुपए के किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर, और आपको कोर्ट 8 हफ्ते की जमानत देती है, और आपको जो कैबिनेट है वो आपको 1 टाइम बाहर जाने की इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर इलाज कराने के लिए आपको बाहर भिजवा देते कि आपको इजाजत है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप इनको जाने दे दें। ये एक मैकेनिज्म था।
जब शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हम तो अपना बैक डोर पे काम कर रहे हैं, हम तो लेटर भी लिख रहे हैं कि इन्होंने कितना 9 महीनों के अंदर इलाज करवाया। अच्छा, हालांकि एक मॉरल अथॉरिटी अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर है कि आप 8 हफ्ते की जमानत के बाद के लिए गए तो आप वापस क्यों नहीं आ रहे? कहते हैं कोविड है तो हम भाई इलाज करवा के ही वापस आएंगे, अब बंदा किया है तो इलाज करवा के ही वापस लेकिन वही बात है ना कि कॉफी पीना इलाज नहीं है। वो तो जाहिर है, आप थोड़ी बहुत चहलकदमी तो इंसान करेगा ही ना। अवैध सेकंड जरा वो आबो हवा की तब्दीली भी होती है, इंसान कहता है कि चलो। सेकंड बात, ये फिर तोशा खाना केस हुआ। तोशा खाना केस में जब उनके वकील गए और उन्होंने कोई बात की तो उन्होंने कहा कि जी जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने फरमाया कि किधर है नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा वो तो एक और केस के अंदर थे, और फिर उन्होंने वहाँ पे ज़मानत मांगी कि मुझे इलाज के लिए बाहर ले आने दे जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या एक शख्स जो ऑलरेडी ज़मानत को, लिमिट्स को क्रॉस करके बाहर बैठा हुआ है, तो क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो वापस आए? अब उसका क्या तरीक़ेकार है, कानून क्या राय अख्तियार करता है? सो ये डिबेट वहाँ से शुरू हुई। देखिए, पंजाब काबीना ने उनकी लिमिट ख़त्म कर दी है, क्योंकि पंजाब काबीना को, और वो जो मेडिकल बोर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस मेडिकल बोर्ड को नवाज शरीफ साहब के मेडिकल बोर्ड या जो भी वहाँ पे वो बरतानिया में इलाज करा रहे हैं, वो किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स देने में या किसी किस्म की कोई मेडिकल रिपोर्ट्स देने में नाकाम है। वो तो कहते हैं हम दे रहे हैं, नहीं दी जी, वो तो कहते हैं हमने दी हैं रिपोर्ट्स। ये वैसी रिपोर्ट्स होंगी ना, जब शहबाज शरीफ साहब कहते थे यूं उंगली हिला के कि जी मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, और फिर डेविड रॉस ने उनको कहा कि आपने एक धेले की क्या, आप तो कफन चोर हैं, आप तो जजला जदगान के एरा के पैसे खा गए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप आइए, मैं बरतानिया में बैठा हूँ और आप मेरे ऊपर मुकदमा करें। मुकदमा तो आज तक डेली मेल के ऊपर ना हुआ, मुकदमा तो आज तक भी ना हुआ। तो वो गोल गोल घुमा के बात करते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक क्यों नहीं की जा सकती? पब्लिक कर दें रिपोर्ट्स, भाई जो उन्होंने भेजा है वो दे दें आप लोग पब्लिक के सामने। मेरे ख्याल में उसकी नौबत भी आई जाएगी, मेरे ख्याल में उसकी नौबत भी आई जाएगी। भी इजाजत दी हुई थी कि आप लोगों का भी कोई नुमाइंदा जाके वहां पर उनसे मिल भी सकता है, तो आप लोग अपने किसी बंदे को भेज दें जो ट्रस्टी हो, ट्रस्टवर्दी हो, आपसे वो जाके मिल ले, उनकी तबीयत। वो मिल के कर क्या लेगा? वहाँ डॉक्टर कहेंगे ये देखो भाई ये रिपोर्टें हैं, बहुत बुरी हालात हैं, तो वो कौन सा शिफा? ये देखे ना, जो गवर्नमेंट है, जो इदारे हैं, जो मैकेनिज्म है, जो दूसरे एक और मुल्क के साथ एक्सचेंज है, वो, और जो हमने परमिशन दी है कोर्ट ने, और जो कैबिनेट ने वन टाइम परमिशन दी है इलाज की, वो तो सब चीजें अपनी जगह पे कायम हैं। उसके ऊपर तो एज काम होगा, जो कि एक तरीकाकार है। उसके अंदर तो कोई 2+2 5 तो है ही नहीं, 2+2 4 कैसे लाएंगे फिर? अच्छा, अब दूसरी बार आती है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है PMLN के अपने लीडरान के ऊपर कि आपने बाईपास किया है, आपने तो कहते हैं इलाज होगा तो आएंगे, आ जाएंगे, उनका तो एक्सटेंड ऑपरेशन है। देखिए, अब हम तो हुकूमत की करेंगे, हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी? वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हुकूमत की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज भी PMLN के वर्कर्स देख लें और उनके स्पोक्स पर्सन देख लें कि आप एक ऐसे शख्स को डिफेंड करने पे मजबूर हो रहे हैं, और वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, जो हर टाइम अपने मफाद को अजीज रखता है और अपनी पार्टी के मफाद को अजीज नहीं रखता। हर दफा तो ये फैसला करेगा देख करना, वो तो अगले इलेक्शन में ऑलमोस्ट फैसला कर चुके हैं। जब 3 दफा की मेन स्ट्रीम की पार्टी सिर्फ पंजाब तक, लाहौर तक महदूद हो जाए, और उसके बाद पहले वो खुद साख्ता बैग लेकर जद्दा भागे हों, पैसे और नोटों के बैग लेके, दूसरी दफा बीमारी का बहाना बना के, तीसरी दफा अब आज हम फिर सेशन में जा रहे हैं और हम एक मनी बिल पास करवाना चाह रहे हैं स्पेशली FATF से निकलने के लिए। FATF में डाला भी ग्रे लिस्ट में PMLN की गवर्नमेंट ने था, हम उससे निकलना चाह रहे हैं, वरना खुदा ना खास्ता पाबंदियां बड़ी सख्त है। कम से कम यही तो कर सकते हैं कि आप लोग उनको वहीं रहने दें जब तक वो नहीं आते, केसेस डिले ना हो, आप लोग चले जाएं अदालत में और कहें कि उनका भी जो वो तो हम ऑलरेडी शिफा आपको शहजाद अकबर साहब पूरा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं। मैं सिर्फ अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि देखें, अवाम भी देखें और इनके अपने वर्कर्स भी देखें। 39 के करीब शिके हैं नैब के अंदर, जिसके अंदर ये 34 शिके जो है वो चेंज करना चाहते हैं, और वो पर्सन स्पेसिफिक हैं। किसी के अंदर नवाज शरीफ को वापस प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसी के अंदर 1 अरब की उसको करप्शन ना माना, कहीं पर जो है वेव ऑफ करना चीज़ों को। 34 शिके बदलना चाहते हैं, जो बाकी 3-4 रह जाते शायद उसमें सिर्फ फिर तनख्वाही ही हो, टूथलेस किस्म का एक इदारा ही हो। आपके ख्याल में कोई टाइम फ्रेम है कि जिसमें आपको लगता है कि नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, या बुला लेगी हुकूमत, आपकी बुलाने में कामयाब हो जाएगी? अवैस कल कैबिनेट मीटिंग है, मंगल को हमेशा हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है, तो आई एम श्योर कि कल उसमें डिस्कशन होगी, ये वाली डिस्कशन भी होगी। तो फिर जो एक कलेक्टिव कैबिनेट से एक स्टेटमेंट आएगी, तो फिर उसके अंदर प्रॉपर सारी दुनिया को पता चलेगा कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन देखिए,
پتہ یہ چل گیا کہ مفروروں کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرے. ان کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ بھی جعلی, ان کے رپورٹس بھی جعلی, ان کے منی لانڈرنگ بھی, ان کے فورج ڈاکومنٹس بھی جعلی. کلیبری فنڈ بعد میں آتا ہے, ان کے فورج ڈاکومنٹس پہلے آ جاتے ہیں. ان کے دادا صاحب جو ہیں وہ پہلے فوت ہو جاتے ہیں, وصیت بعد میں آ جاتی ہے. تو یہ انفارچونیٹلی المیہ ہے کہ پاکستان میں پی ایم ایل این جیسی پارٹیوں کی موریلٹی اور پالیٹکس اتنی نیچے چلی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب نیب کے کورٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پتھراؤ کرتے ہیں, وہاں کہتے ہیں پھول جو ہے وہ پتھر بن جاتے ہیں. اور بجائے سے کہ یہ حساب دیں مریم بی بی کے, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا تو ہماری طرف سے اگر تھوڑا بہت ہو گیا تو کیا بڑی بات ہوگی. پی ٹی وی پہ کسی نے حملہ نہیں کیا تھا, وہ کیس سارے لوگ بھگتا رہے ہیں. لیکن اپنا بتائیں نا, جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا اوپر چڑھ گئے تھے یہ. اسی طریقے سے ابھی جب نیب کورٹس میں بھی آپ دیکھ لینا, بجائے اس کہ یہ بات بتائیں کہ تقریباً 8 مربع کے قریب جو زمین ہے جو لاہور میں آپ نے یا تو انکروچ کی ہوئی ہے یا آپ نے ہتھیائی ہوئی ہے, یا آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, منی ٹریل کیا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کبھی زرداری صاحب 18ویں ترمیم کو کہتے ہیں خطرہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو خطرہ ہے اور جمہوریت کو خطرہ ہے. بھائی ان سے پاکستان کو خطرہ ہے, پاکستان کو بھی خطرہ نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ عوام کو اور پاکستان کو کبھی خطرہ ہو. بہت شکریہ ادا کریں گے زرتاج گل وزیر صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, آپ کی وزارت کام خوب کر رہی ہے, آگے بھی اسی طرح پاکستان کو ہرا بھرا بناتے رہیں.